Assalamu alaikum दोस्तों. Today we are going to study the correction of sentences regarding the use of nouns and pronouns. आज हम noun और pronoun के जरिए sentences की correction करेंगे. Rules for correction of noun. Rule 1. The following words will always be written in the shape of singular, whether they give the meaning of plural. It means s or es will not be added with these words. दरअसल अल्फाज को हमेशा वाहिद की शक्ल में लिखते हैं, चाहे वो जमा का मतलब क्यों ना दे. इसका मतलब यह है कि इन अल्फाज के साथ एस या es का इजाफा नहीं किया जाता. हेयर, पीपल, डियर, फिश, कैटल, शीप, poultry, furniture, stationery, vacation, machinery, scenery, etc. इन अल्फाज को हमेशा वाहिद की शक्ल में लिखते हैं, चाहे ये प्लूरल का मीनिंग दें, जमा का मीनिंग दें. Let's see some examples. The sceneries of Kashmir is beautiful. Sceneries नहीं जी, the scenery of Kashmir is beautiful. The kettles are grazing. अब kettles जो यहाँ पर है वो प्लूरल का मीनिंग दे रहा है, kettles नहीं होगा, kettle होगा. The kettle are grazing. I bought some stationeries. It is wrong. I bought some stationery. Stationeries नहीं, stationery. I will go to Lahore in summer vacations. गलत. I will go to Lahore in summer vacation. Vacations नहीं, vacation. Next rule. If the following words are followed by a number, no s or es will be added with these words. अगर दस झैल अल्फाज के साथ कोई अददी नंबर आ जाए, कोई नंबर आ जाए, तो इन अल्फाज के साथ भी एस या es का इजाफा नहीं किया जाता. कौन से अल्फाज हैं जी? स्कोर, डजन, पेयर, हेड, 100, 1000, स्टोन, यॉर्क, etc. अब इनके एग्जाम्पल्स जैसा चलूं. आई हैव 2 pairs ऑफ शूज. पेयर्स के साथ 2 आ गया है तो हमने आई हैव 2 pair ऑफ शूज. जब इसके साथ अददी नंबर आ गया है तो हमने क्या करना है, हमने पेयर्स नहीं लिखना, पेयर लिखना है. ही बॉट 5 dozens बनानाज. 5 आ गया, डजन्स नहीं आएगा, 5 dozen बनानाज. शी गेव मी 500 रुपीज. 5 नंबर आ गया है हंड्रेड्स के साथ. शी गेव मी 500 रुपीज. ही मेड 50 स्कोर्स. स्कोर्स के साथ 50 आ गया है तो एस एस का इजाफा नहीं होगा. ही मेड 50 स्कोर. इस तरह आपने देखा कि जब इन अल्फाज के साथ अददी नंबर आ जाए तो हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना. In our next rule, the following words will always be written in the shape of plural, whether they give the meaning of singular. It means s or es will always be added with these words. दरअसल अल्फाज को हमेशा जमा की शक्ल में लिखते हैं, चाहे वो वाहिद का मीनिंग देते हों. इसका मतलब यह है कि इन अल्फाज के साथ एस या ई एस का इजाफा ज़रूर किया जाता है. वेजेस, गुड्स, सॉक्स, ट्राउजर्स, एथिक्स, means, innings, news, the United States, orders. इन अल्फाज के साथ एस एस का इजाफा ज़रूर किया जाता है और इनको प्लूरल शेप में लिखा जाता है. Let's talk about some examples. The wages of sin are hell. The wages of sin is hell. Wages यहाँ पर सिंगुलर का मीनिंग दे रहा है लेकिन प्लूरल की शेप में लिखा हुआ है. I have a pair of socks. I have a pair of socks. Sock नहीं आएगा, socks आएगा. प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, प्लूरल शक्ल में लिखेंगे. I heard the news of your promotion. I heard the news of your promotion. Wrong. I heard the news of your promotion. Right. He did not obey my order. Wrong. He did not obey my orders. Rule 4. The following words are apparently written in singular form but always have a plural meaning and a plural verb will be used.
दरअसल अल्फाज ज़ाहिरी तौर पर सिंगल दिखाई देते हैं, लेकिन ये जमा का मानी देते हैं और इनके बाद हमेशा जमा का वर्ब आता है। पुलिस, पीपल, स्वाइन, पोल्ट्री, कंपनी, कैटल, आर्टिलरी, क्लर्जी, वमिन एट्सट्रा। ये जो अल्फाज हैं, ये अल्फाज ज़ाहिरी तौर पर तो सिंगुलर दिखाई देते हैं, लेकिन ये प्लूरल का मीनिंग देते हैं। एंड ऑलवेज हैव अ प्लूरल वर्ब। Some examples: the people is walking in the park. The people are walking in the park. अब आपने देखा कि people ज़ाहिरी तौर पर तो वो सिंगुलर दिखाई देता है, लेकिन उसका प्लूरल मीनिंग होता है। Police does not arrest the thief. Wrong है। Police do not arrest the thief. ये right है जी। The cattle is grazing in the field. Wrong. The cattle are grazing in the field. The clergy is in the church. The clergy are in the church. तो ये अल्फाज जो थे ये ज़ाहिरी तौर पर तो अपैरेंटली सिंगुलर दिखाई देते हैं, लेकिन प्लूरल का मीनिंग देते हैं जी। नेक्स्ट रूल, द फॉलोइंग वर्ड्स आर अपैरेंटली रिटन इन प्लूरल फॉर्म बट दे हैव सिंगल मीनिंग एंड ऑलवेज हैव अ सिंगुलर वर्ब। दरअसल अल्फाज ज़ाहिरी तौर पर तो जमा दिखाई देते हैं, लेकिन ये सिंगल का मीनिंग देते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगल वर्ब इस्तेमाल होता है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथलेटिक्स, माइल्स, इनिंग्स, मीन्स, ट्राउजर्स एट्सट्रा। ये जो अल्फाज हैं इनके साथ क्या होगा जी कि ये ज़ाहिरी तौर पर तो प्लूरल की शक्ल में है, लेकिन ये सिंगुलर मीनिंग देंगे। जो हमने पिछला रूल पढ़ा है उससे ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसमें तो सिंगल की शक्ल थी और प्लूरल मीनिंग था। यहाँ पर क्या है जी, प्लूरल की शक्ल है और सिंगल का मीनिंग है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देते हैं। मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रॉन्ग। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान आर डिफिकल्ट। Politics in Pakistan is difficult. 10 miles are a long distance. 10 miles is a long distance. His innings were amazing. His innings was amazing. ये लफ्ज़ देखें किस तरह प्लूरल की शक्ल में है, लेकिन सिंगुलर मीनिंग दे रहे हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। In our next rule, we will study that if the members of a collective noun are agreed on an issue, single helping verb will be used. But if the members are not agreed, plural helping verb will be used. अगर किसी इसम जमा या कलेक्टिव नाउन के अरकान आपस में मुत्तफिक हों तो इमदादी फ़ेल या हेल्पिंग वर्ब वाहिद का होगा, और अगर मुत्तफिक ना हो तो हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फ़ेल जो है वो जमा का इस्तेमाल होगा। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द जूरी आर एग्रीड ऑन इट्स डिसीजन। द जूरी इज एग्रीड ऑन इट्स डिसीजन। अब जूरी जो है वो डिसीजन पर एग्री है, तो इसलिए ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होगा। कमेटी इज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। कमेटी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। अब चूंकि वो डिवाइडेड है, मुत्तफिक नहीं है, तो फिर प्लूरल का मीनिंग देगा। नेक्स्ट रूल, मटेरियल नाउन डज नॉट हैव इट्स प्लूरल फॉर्म एंड सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड आफ्टर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो है इसमें मादा है, इसकी जमा नहीं होती और इसके बाद सिंगल वर्ब या सिंगल इमदादी फेल का इस्तेमाल होता है। दोबारा बताता चलूँ, मटेरियल नाउन डज नॉट हैव इट्स प्लूरल फॉर्म एंड singular verb will be or helping verb will be used after material noun. Examples: the rices are delicious. Wrong. The rice is delicious. Rice material noun है जो कि सिंगुलर के तौर पर होता है, इसकी प्लूरल नहीं होती। The waters is sweet. Wrong. The water is sweet. The sugars are very nice. The sugar is very nice. मटेरियल नाउन है तो उसकी
प्लूरल फॉर्म नहीं होती, नो प्लूरल फॉर्म ऑफ मटेरियल नाउन. Abstract noun does not have its plural form, and singular verb or singular helping verb will be used after abstract noun. But some words like act of, words of, piece of are used to make its plural. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसम नकरा की जमा नहीं होती और इसके बाद सिंगल वर्ब या सिंगल इमदादी फेल इस्तेमाल होगा. तहम इसकी जमा बनाने के लिए दर्ज बाला अल्फाज जिनमें एक्ट ऑफ, वर्ड्स ऑफ, पीस ऑफ अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Honesties are the best policies. Wrong. The acts of honesty are the best policy. और honesty is the best policy. तो honesty abstract noun है, उसका plural बनाने के लिए हमने acts of का इस्तेमाल किया या उसे singular के तौर पर इस्तेमाल करेंगे. Braveries are good qualities. The acts of bravery are good qualities. He gave me an advice. He gave me a piece of advice. तो इस तरह हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल किए. Now we will study correction of pronoun. अब हम correction of pronoun पढ़ेंगे. First rule, pronouns should be according to the types of nouns. Masculine, feminine, singular, plural, etc. pronoun जो हैं उनको नाउन की इकसाम मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है. Examples of rule 1. He should do her duty. He should do his duty. One should complete his work. One should complete one's work. She will do his duty. She will do her duty. तो आपने देखा किस तरह नाउन के मुताबिक ही प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है. ही के लिए हिज, शी के लिए हर, वन के लिए वंस, दे के लिए देम, दे के लिए देयर. नेक्स्ट रूल, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन विल बी यूज्ड आफ्टर वर्ड्स इज, एम, आर, वाज, वर, देन एंड एज. दर्ज वाला अल्फाज जिनमें इज, एम, आर, वाज, वर, देन और एज शामिल हैं, इनके बाद हमेशा प्रोनाउन की फाइली मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज हिम. रॉन्ग. दिस इज ही. इसके बाद सब्जेक्टिव फॉर्म हिम नहीं ही आएगा. ही इज टॉलर देन मी. देन के बाद आई फॉर्म आएगी मी की, सब्जेक्टिव फॉर्म. He is taller than I. She is as wise as him. Wrong. She is as wise as he. Then और as के बाद भी subjective form. Objective form of pronoun will be used after verb, prepositions and the words between let and for. दर्ज वाला अल्फाज जिनमें कोई भी verb, preposition, बिटवीन, लेट और फार हो, उसके बाद प्रोनाउन की हमेशा मफऊली यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी. दोबारा सुन लें, ये अल्फाज जिनमें वर्ब, प्रपोजिशंस, बिटवीन, लेट और फार है, इनके बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी. फॉर एग्जांपल्स, ही मेट आई. ही मेट मी. द प्रॉब्लम वाज बिटवीन यू एंड आई. बिटवीन आ गया तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म. द प्रॉब्लम वाज बिटवीन यू एंड मी. द गिफ्ट इज फॉर शी. फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी. द गिफ्ट इज फॉर हर. लेट आई एक्सप्लेन माई सेल्फ. रॉन्ग. लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ. तो आपने देखा किस तरह कोई वर्ब हो, बिटवीन हो, फॉर हो या लेट हो, उनके बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है. नेक्स्ट रूल, हु इज यूज्ड फॉर पीपल
which is used for things and that can be used for either. Note that for people is considered informal. However, these words must be used after the word for which they are being used. इंसानों के लिए who, इंसानों के अलावा जानदार और बेजान अशिया के लिए which, अलबत्ता that का इस्तेमाल दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन that का इस्तेमाल इंसानों के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। अलबत्ता इन अल्फाज का इस्तेमाल उन अल्फाज के फ़ौरन बाद हो जाना चाहिए जिनके लिए ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दोबारा बताऊं कि हु इंसानों के लिए और विच गैर इंसानों दूसरे जानदारों और बेजान अशिया के लिए, जबकि दैट का इस्तेमाल दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन दैट का इस्तेमाल लोगों इंसानों के लिए इस्तेमाल करना इनफॉर्मल है, मुनासिब नहीं है। For examples, the boy was my brother which met you. पहली बात तो ये कि बॉय के लिए विच नहीं आएगा, हु आएगा, एक तो ये गलती। दूसरा, जो विच की प्लेसमेंट है उसमें भी गलती है कि वो बॉय के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो बॉय के फ़ौरन बाद आना चाहिए था। पहले तो विच नहीं आएगा, हु आएगा और द बॉय के फ़ौरन बाद आएगा। द बॉय हु मेट यू was my brother. The pen who I bought is very beautiful. अब पेन जो है उसके लिए हमने who का इस्तेमाल नहीं करना, which का इस्तेमाल करना है। The pen which I bought is very beautiful. तो देखा किस तरह से who और which का इस्तेमाल किया जाता है। In our next rule, if the first part of a sentence contains the words such or the same, the words as or that will be used in the second part of the sentence instead of who and which. अगर जुमले के पहले हिस्से में सच या the same वाले अल्फाज का इस्तेमाल हो तो दूसरे हिस्से में who या which की जगह as या that का इस्तेमाल किया जाता है। दोबारा बताता चलूँ कि अगर जुमले के पहले हिस्से में सच या द सेम वाले अल्फाज इस्तेमाल किए गए हों तो दूसरे हिस्से में हु या विच का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि उनकी जगह पर जो अल्फाज हैं एज या दैट का इस्तेमाल किया जाएगा। Here are some examples. This is the same pen which I bought. द सेम आ गया तो विच या हु का इस्तेमाल नहीं होगा। दिस इज द सेम पेन दैट आई बॉट। ही इज द सेम बॉय हु मेट मी। रॉन्ग, ही इज द सेम बॉय दैट मेट मी। एज मेट मी, तो दैट भी आ सकता है और एज भी आ सकता है, द सेम के साथ हु और विच का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज नॉट सच अ बुक विच आई नीडेड। सच आ गया तो अब विच या हु का इस्तेमाल नहीं होगा। दिस इज नॉट सच अ बुक एज आई नीडेड, तो सच के साथ एज या दैट का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट रूल, द फॉलोइंग प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड। दर झैल प्रोनाउंस को सिंगल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है हमेशा, और सिंगल इमदादी फेल या सिंगल वर्ब ही इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल हेल्पिंग वर्ब या सिंगल वर्ब का हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का इस्तेमाल होता है। ईच, एवरी, नो वन, एनी वन, नीदर, ईदर एंड नन। दोबारा सुन ले, ईच, एवरी, नो वन, एनी वन, नीदर, ईदर एंड नन, ये हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबॉडी कैन डू देयर जॉब। रॉन्ग, एवरीबॉडी कैन डू हिज जॉब। अब एवरीबॉडी को सिंगुलर के तौर पर लेंगे तो देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। इन अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरीवन हैज डन देयर वर्क। एवरीवन हैज डन his work. Next rule, neither, either and each other are used for two things or two persons.
दर्ज वाला अल्फाज जिनमें नीदर, ईदर और ईच अदर शामिल हैं वो दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये दो इंसानों के लिए इस्तेमाल होते हैं। नन, एनीवन एंड वन अनदर आर यूज्ड फॉर मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स। दर्ज वाला अल्फाज जिनमें नन, एनीवन, वन एंड अदर, ये अल्फाज जो हैं ये दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दो चीज़ों के लिए, नीदर, ईदर एंड ईच अदर, जबकि दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए, मोर देन टू के लिए, नन, एनीवन एंड वन एंड अदर। फॉर एग्जाम्पल्स, नीदर ऑफ देम इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। देम आ गया तो देम अब दो से ज्यादा को जाहिर कर रहा है, तो नन ऑफ देम इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो नीदर दो के लिए था, दो से ज्यादा हो तो फिर नन। टू ब्रदर्स लव वन अनदर, अब टू आ गया तो टू के साथ वन अनदर नहीं आएगा, बल्कि टू के साथ क्या आएगा, ईच अदर। टू ब्रदर्स लव ईच अदर। नन ऑफ द टू ब्रदर्स इज एबल, अब टू आ गया तो टू के साथ नन नहीं आएगा, टू के साथ क्या आएगा, नीदर। सो नीदर ऑफ टू ब्रदर्स इज एबल। इन आवर नेक्स्ट रूल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड विद फॉलोइंग वर्ड्स। दरअसल अल्फाज के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिंक, इंजॉय, अवेल, अवेंज, एब्सेंट एंड एक्विट, these are the words we use reflexive pronoun with them। इन अल्फाज के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he availed of the opportunity, अब availed के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, तो he का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन himself है, he availed himself of the opportunity। They enjoyed at the concert, तो अब enjoyed के साथ हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, they enjoyed themselves at the concert। आई होप कि आप लोगों ने तमाम रूल्स को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।